میں آگے ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جو پاکستان فلم سینسر بورڈ کے ساتھ منسلک رہے، آپ اس کے سیکرٹری رہے، ساری فلمیں ان کے پاس سینسر ہونے آتی تھیں، قومی موضوعات کی فلمیں بھی تھیں، یہ امن اس میں سیاست کی فلمیں بھی تھیں، کالے چور جو ان کے دادا نے بنائی تھی۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا دیکھتے ہیں سیاست کو بھی، سماج کو بھی، اور ہمارے اس عہد کے دانشور ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سید احمد حسن زیدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے اور آپ اس کتاب کے اوپر اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منظور گیلانی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر قابرین، معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے بزم انجم رومانی کو خراج تحسین۔ انہوں نے عوامی فلاحی پارٹی کے سربراہ کو مخاطب کرا، شیراز الطاف کی کتاب میں کیا چاہتا ہوں کے حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک کتاب کا شائع ہونا بہت اہم ایونٹ ہوتا ہے، اور کتاب میں اگر نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہو تو ایونٹ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ کتاب زندگی گزارنے کے لیے تو ضروری نہیں ہوتی، لیکن زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کتاب کا مطالعہ شعور کو بلند کرتا ہے، بیداری اور خودداری پیدا کرتا ہے۔ ہمارے عہد کے بلند پایا ولی کامل اور جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ ابھی تک تازہ دم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اکثر کتابوں میں نور ہوتا ہے، فطور نہیں ہوتا، انہیں دل کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، یہ کتاب محنت، ریاضت اور جہد مسلسل کا پیغام ہے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ جب کسی مصنف کی کوئی کتاب شائع ہو تو ساری فیملی میں اور ساری سٹی میں جشن ہونا چاہیے۔ تو یہ تقریب بھی جشن کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس میں شیراز الطاف نے سادہ عام فہم انداز میں اپنی سوانح بھی بیان کی ہے، اپنی کاروباری اور سیاسی جدوجہد پر بھی روشنی ڈالی ہے، تحریک انصاف میں شمولیت، پھر جواد احمد کی برابری پارٹی میں شرکت اور عہد کی پھر قیوم نظامی کی پاکستان جاگو تحریک سے وابستگی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی آرزوؤں امنگوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی اہم تجویز پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیز میں طلباء کے سامنے ایسے لیکچر دیے جائیں جو ان کو قائد اعظم کے افکار سے اور علامہ اقبال کے اشعار سے آگاہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی سے بھی روشنی حاصل کر سکیں، رسول کے پیغام سے آشنا ہو سکیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کی ذات سے ہمیں جہد مسلسل کا پیغام ملتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ بیزار و ناخوش ہو مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ آواز اقبال کے دل کی گہرائیوں سے، وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں بار بار رکنا پڑ رہا ہے مجھے۔ اقبال نے کہا تھا کہ بیزار و ناخوش ہو مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ آواز اقبال کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اس لیے سننے والوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی، اور اس تحریک پہ لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں نے، ہند نے ایک عظیم قائد کی قیادت میں تحریک شروع کی۔
कारवां चलता रहा, नज़्म में ढलता रहा। जिस तरह वन मैन वन वोट का फॉर्मूला है, इस तरह एक वक्त में ना वन मैन वन वॉइस होना चाहिए। तो आवाज़ें मिल जाती हैं। मैं डिस्टर्ब हुआ, इस वजह से मैं जरा मादरत करता हूँ। कारवां चलता रहा, नज़्म में ढलता रहा, एक आवाज के पीछे कि जो थी रहमा की सूरत, दिलों में गूंजी थी बांधे तरा की सूरत। तो इस अजीम जद्दोजहद और लाफानी कुर्बानियों के नतीजे में इकबाल के ख्वाबों का मुकद्दस हरम पाकिस्तान की शक्ल में दुनिया के सामने आया। तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का जो कंट्रीब्यूशन है, इस पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। वक्त कम है, मैं तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन हमारे अहद के मुमताज शायर और मेरे बहुत ही मोहतरम शमदम रुमानी ने अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद को और क़याम पाकिस्तान के मकसद को, वजह को उन्होंने 4 मिसरों में बयान कर दिया है। वो आप देखें। वो जो तकसीम के मुखालिफ हैं उन्हें क्या मालूम, मेरी तारीख का दुश्मन मेरा हमसाया था, मेरी तारीख का दुश्मन मेरा हमसाया था। अब 2 लफ्ज आ रहे हैं, मुदब्बिर का लफ्ज आ रहा है और फकीर सुखनारा का लफ्ज आ रहा है। मुदब्बिर का लफ्ज कायद-ए-आज़म के लिए, फकीर सुखनारा का लफ्ज अल्लामा इकबाल के लिए। वो जो तकसीम के मुखालिफ हैं उन्हें क्या मालूम, मेरी तारीख का दुश्मन मेरा हमसाया था। एक मुदब्बिर ने लड़ी थी मेरी तौकीर की जंग, एक फकीर सुखनारा मेरे काम आया था। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों अजीम मुदब्बिर थे, स्टेट्समैन थे। हमारे यहाँ सियासतदानों की तो बहुत कसरत है, हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सियासतदान पैदा होते हैं, लेकिन स्टेट्समैन कोई नहीं। स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन में जो फर्क होता है वो ये होता है कि पॉलिटिशियन इज ही who thinks about the next elections and a statesman is he who thinks about the next generation. अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म ने अपने आइंदा इंतखाबात और अपने सियासी मफादात के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने आने वाली नस्लों के मफादात के बारे में सोचा। अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म दोनों ने अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म दोनों ने सीरत-उन-नबी से रोशनी हासिल की। इकबाल ने रसूल को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा था, खेमा इफ्लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ते शान रफ़ाना लगा जिक्र। बाज़ ताकतें, बाज़ इस्लाम दुश्मन ताकतें जिक्र रसूल को बंद करना चाहती हैं और रब ताला जिक्र रसूल को बुलंद करना चाहता है। जिक्र रसूल हमेशा 2 मिनट में रसूल ने हमें जो निज़ाम दिया वो निज़ाम ज़िंदगी भी है, निज़ाम ज़िंदगी। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे में के लिए हिदायत है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद लंदन में शायरों, अदीबों, साइंसदानों, समाजी और सियासी रहनुमाओं की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। उसमें इस बात पर गौर किया गया कि इंसानियत को, खासतौर पर यूरोप को तीसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियों से कैसे महफूज रखा जाए। मुख्तलिफ मुकर्रिरीन अपनी तजवीज़ पेश करते रहे। अजीम ड्रामा निगार, नक़ाद, अदीब चाह गया कि आप भी इस मौजू पे इज़हार ख्याल करें। वो काफी पी रहा था, उसके हाथ में काफी का कप था। आधी काफी खत्म हो चुकी थी, आधा कप बाकी था। उसने माइक पे आके ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर सारी इंसानियत, सारी अक़वाम पैगम्बर इस्लाम को अपना हुक्मरान और रहबर तस्लीम कर ले और आपकी तालीमात पर अमल करे तो काफी का ये कप खत्म होने से पहले इंसानियत के मसाइल हल हो जाए और इंसानियत मसाइल आलाम से निजात पाएगी। हकीकत यह है कि इंसानियत का वो सलामती अमन
आमना के लाल के कदमों में मिलेगी, ये कहीं और से नहीं मिलेगी। वह मैं एक बहुत अहम बात वो करके अपनी गुफ्तगू को रूई पास्चर, फ्रांस का अजीम साइंसदान जिसने कुत्ते के काटे का इलाज दरियाफ्त किया था, उसने कहीं पढ़ा कि पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया है, अगर किताब में पढ़ा तो पैगंबर इस्लाम ने यह हुक्म दिया है, ये फरमाया है कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो इसको 7 बार होना चाहिए ताकि जरासीम दूर हो जाए। उसने सोचा कि ये 7 बार का क्यों कहा है, जरासीम तो एक बार भी धोने से दूर हो सकते। उसने 1 बार धोया, 2 बार धोया, 3 बार धोया और टेलीस्कोप से वो मायना करता रहा, जरासीम मौजूद थे। जब 7वीं बार उसने बर्तन धोकर मायना किया, देखा टेलीस्कोप से तो जरासीम दूर हो चुके थे। उसकी ज़बान से ये जुमला निकला, पैगंबर इस्लाम ने बिल्कुल सही कहा था, यकीनन 7 बार धोने से जरासीम दूर होते हैं। तो ये असल में साइंस सदियों के तजुर्बात और मुशाहिदात के बाद जिस नतीजे पर पहुंचती है, नबूवत चंद लम्हों में उस नतीजे पर पहुंच जाती है। मेराज मुस्तफ़ा ने किया जो राज अफशा, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है, फैलाए हुए कोशाए दामान तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही। आगा शोरज काश्मीरी का एक वाकया बयान करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि उन्होंने लिखा है कि हम जेल में थे, हमें शाम के वक्त 1 घंटे के लिए निकाला जाता था, हम लोग आपस में बातें करते थे, दूसरे पेरिस के कैदी और वॉलीबॉल खेलते थे। तो एक साहब थे, वो मज़हब पे यकीन, सियासी वर्कर थे, वो मज़हब पे यकीन नहीं रखते थे। तो उन्होंने आगा शोरज काश्मीरी ने कहा कि या मैंने सुना है कि पैगंबर इस्लाम ने ये भी बताया है कि खड़े होकर यूरिन पास न करो, लेकिन मैं तो हमेशा खड़े होकर करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आगा शोरज काश्मीरी की बात आई तो एक माहिर कादरी का एक शेर उनके हवाले से, माहिर कादरी एक कराची से लाहौर आए, तो उनके एक दोस्त उन्हें शूटिंग दिखाने ले गए शानूर स्टूडियो में। तो वहाँ इत्तेफाक से आगा शोरज काश्मीरी भी पहुँच गए। तो मौलाना माहिर कादरी उनको देखकर बड़े परेशान हुए कि कहीं चट्टान में मेरे खिलाफ कुछ लिख न दे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ से हम चलते हैं। तो उन्होंने जाने से पहले फिल्मती शेर कहा, दिल लगाने का जहाँ मौका भी था, कोशिश भी थी, हाय वो महफिल जहाँ शोरश भी था, शोरश भी थी। तो ये उसने कहा कि मैं तो हमेशा खड़े हूँ बाहर। उसने और एक रसूल करीम का इरशाद ये भी है कि सुराख में जहाँ कहीं सुराख हो उसमें यूरिन पास ना किया जाए, ना पानी डाला जाए। तो उसने खड़े होके वहाँ पे दीवार के साए में ऐसा किया तो एक नेवला निकला, वो उसने उसके पाँव पे कस लिया, काफ़ी तकलीफ में रहे। उसने आगा शोरज काश्मीरी ने कहा कि यह पैगंबर इस्लाम ने बिल्कुल सही कहा था, अब मैं बैठ कर ही यूरिन पास किया करूँगा। और मैं गल एक नुक्ते बिच मुक्ति है बाबा बुल्ले शाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग अलग थे।